Instantaneous velocity. The average velocity does not describe the motion of the particular instant of time during which time interval the average velocity is calculated. Hence, to know how fast the particle moves at a particular instant of time, we define instantaneous velocity. The velocity of a particle at a particular instant of time, not during a finite time interval, is known as instantaneous velocity. The instantaneous velocity, Vx, equals the limiting value of the average velocity, delta x by delta t, as delta t approaches 0. Vx equals to limit delta t tends to 0, delta x by delta t. This limit is called the derivatives of x with respect to t, written as dx by dt. Vx equals to limit delta t tends to 0. Delta x by delta t equals to dx by dt. The instantaneous velocity is the rate of change of position with time. In figure, as the time interval delta t gradually becomes smaller and smaller, the point P2 approaches P1 and the line joining P1 to P2 gets steeper and steeper. This steepness cannot be more than that of the tangent to the curve at time t1, that is, at P1. The slope of this tangent line at P1 is the instantaneous velocity at the time t1. This slope may be positive, x increasing, or negative, x decreasing. Hence, the instantaneous velocity may be positive or negative in straight line motion. The magnitude of the instantaneous velocity is called the instantaneous speed. In uniform motion, the instantaneous velocity of a body is equal to the average velocity. So hello everyone, in this video we solved some related calculus approach questions. In this video, hello everyone, in this video we cover by calculus method how to derive the equation of motion. So first we cover some basic key point related to this derivation, instantaneous velocity. Our first point is instantaneous velocity. The velocity of an object at a particular instant or a particular point of its path is called instantaneous velocity, and which is denoted by dx by dt is equal to v, ds by dt is equal to v, where v is equal to instantaneous velocity. तो इस डेरिवेशन को समझने के लिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो यहाँ पे बिल्कुल इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा टाइम, ऐसा वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी वेलोसिटी कि जब वो किसी पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका जो जितनी वेलोसिटी होगी उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं और इसे v से डिनोट करते हैं. और इसका जो मैथमेटिकल अप्रोच होता है वो होता है dx by dt, या इसे ds by dt से भी डिनोट करते हैं. यहाँ पे जो dx और dt है ये बहुत छोटे एलिमेंट हैं टाइम और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स इसमें इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए. एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी. तो स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं. और वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो ये जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमें मालूम है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, इसमें जो इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है वो होता है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी दी होती है. ठीक है, तो इसको हम वेलोसिटी को इसलिए हम वेक्टर कैटेगरी में रखते हैं. उसी तरीके से
जो हमारा स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड दिया रहता है। क्या दिया रहता है? मैग्नीट्यूड दिया रहता है। कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन का उसमें हमें मालूम नहीं चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे इसको एक फिगर से समझाना चाह रहा हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और स्पीड एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और ये भी यूनिट हमको मीटर पर सेकंड मिलता है। यूनिट में तो दोनों की सिमिलरिटी है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस इसमें होता है। तो इसको इस तरीके से हम समझते हैं कि सपोज यहाँ पे हमारा स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, ये स्कूल की बिल्डिंग है हमारी, और यहाँ से कोई स्टूडेंट यहाँ से चलना शुरू करता है। कोई स्टूडेंट है, ये कोई स्टूडेंट है, यहाँ से चलना शुरू करता है, और यहाँ पे इस वाले टाइम पे ये जो स्कूल और ये जो स्टूडेंट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। सपोज ए पॉइंट है और स्कूल जो यहाँ पे इस स्कूल की पोजीशन है वो बी है, और यहाँ से ए टू बी जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। ये 1000 मीटर का डिस्टेंस है स्कूल से और इस स्टूडेंट के बीच का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रिलेटिव टर्म समझना चाह रहे हैं, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, और उसके बेसिस पे हम इस वाले की पॉइंट को समझेंगे। तो देखो, ये जो स्टूडेंट है यहाँ से चलना शुरू करता है, और थोड़ी देर बाद इसकी जो ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड हमें पता लग रहा है कि स्पीड है इसका, जो कि क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड यहाँ पे मालूम है। थोड़ी देर बाद ये आगे पहुँचता है और 40 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, बढ़ जाती है इसकी स्पीड, और ये यहाँ पे पहुँचता है। यही बच्चा यहाँ पे पहुँचता है। फिर इसके बाद अब उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, सपोज उसके स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो वो थोड़ा अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा और तेज़ दौड़ेगा, और वो यहाँ पे पहुँच के इस वाले टाइम पीरियड में पहुँच के उसकी जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है सपोज 60 मीटर पर सेकेंड की। तो यहाँ पे हमें मालूम चल रहा है, बहुत ही स्पेशल कैटेगरी से मालूम चल रहा है कि इस वाले टाइम इंस्टेंट में जो स्पीड थी वो 30 मीटर पर सेकेंड थी, ये उस वाले इंस्टेंट में 40 और यहाँ पे 60। तो ऐसी स्पीड जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के साथ साथ, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो, सपोज इसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज ये बच्चा है, ये बिल्कुल केसेस इसके इसी तरीके से हैं, उसे स्कूल पहुंचना है, इसी स्कूल पहुंचना है, और स्कूल सपोज राइट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये स्टूडेंट जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट डायरेक्शन में चलता है। थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड में चेंज आता है, वो इंक्रीज करता है अपनी स्पीड को, मीन्स वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन का भी मालूम चल गया कि ये राइट डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड मीन्स डायरेक्शन के साथ साथ वैल्यू भी हमको मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड राइट, 40 मीटर पर सेकेंड राइट, और जब वो स्कूल के नियर बाई पहुँचेगा तो 60 मीटर पर सेकेंड के नियर बाई आएगा। तो ये जो रिलेटिव टर्म्स होता है, जो कि हमें डायरेक्शन के साथ साथ उसका मेजरमेंट देता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इसका डेफिनेशन यह है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया मैथमेटिकली। इसको लिखते हैं मैथमेटिकली, इसे dx/dt कैलकुलस में लिखा जाता है। कैलकुलस में dx/dt से इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, या ds/dt से भी इसे लिखा जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट की पॉइंट है, इसको हमें समझना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है इसे। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, वो है हमारा सेकंड पॉइंट हमारा है, वो है इससे मिलता जुलता पॉइंट है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। बेसिक इंफॉर्मेशन हमें एक्सेलरेशन की होती है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये जो बेसिक हमारी इंफॉर्मेशन है, इसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि अगर बहुत छोटा
बहुत छोटा इंक्रीमेंट में वेलोसिटी का चेंजेस आ रहा है जिसे हम डीवी से समझते हैं, और बहुत छोटे टाइम इंस्टेंट में वो चेंजेस मिल रहा है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वेर v इज इक्वल टू वेरी स्मॉल टाइम एंड t इज इक्वल टू स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इसका डेफिनेशन हम समझ सकते हैं, द वेलोसिटी चेंज with respect to time is called instantaneous acceleration। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए, इसे ए से डिनोट करते हैं, मैथमेटिकली इसे डी वी बाई डी टी हम लिखते हैं। अब सपोज एक छोटे से क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं कि ये जो रिलेटिव टर्म्स है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो रिलेटिव टर्म्स हैं इसकी हमें जरूरत कहाँ पे पड़ने वाली। सपोज हमारे पास डिस्टेंस एक्स टी का एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, वो एक्स टी इज इक्वल टू 3t² माइनस टी। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और दूसरा रिलेटिव टर्म्स हमें निकालना है एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, सॉरी ये डी एक्स बाई डी टी है, ये है आपके पास डी एक्स बाई डी टी। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने कैलकुलस मेथड, जो हमने कैलकुलस का यूज़ करना सीखा था, कैलकुलस में बेसिकली हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं या डी बाई डी टी से डिनोट करते हैं, और इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, और इंटीग्रेशन हमने ये बेसिक चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की हुई है प्रीवियस लेक्चर में। तो हमें यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है गिवन, इसको सॉल्व करेंगे। गिवन हमारे पास है एक्स टी इज इक्वल टू 3t² माइनस 4, ये हमारे पास गिवन है, और हमें फाइंड करना है डी एक्स बाई डी टी, और यही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमारा फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे v हमें फाइंड करना है, तो ये d बाई डी टी ऑफ x। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन भी हमको गिवन है, और वो भी t के फंक्शन जो है वो x की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है, वो भी हमें t के रिलेटिव टर्म्स में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एक्स टी का जो फंक्शन है, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 3t² माइनस 4। अब इसके बाद हमको मालूम है ब्रैकेट को जो हम सॉल्व करेंगे, ये d बाई डी टी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम इसको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके समझ सकते हैं, ये हो जाएगा 60, क्योंकि हमें फॉर्मूले मालूम है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, और ये पावर फॉर्मूले से हो जाएगा 60। तो ये इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी आई वो आ गई 60। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो ए होता है वो होता है डी वी बाई डी टी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई पहले वाले पार्ट से, उसको यहाँ पे रखेंगे, वो है हमारे पास 60, और उसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये पार्ट में इधर लिख रहा हूँ। जो सेकेंड पार्ट हमारा है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन निकालना है इंस्टेंटेनियस। तो डी बाई डी टी वेलोसिटी की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट से हमने अभी कैलकुलेट की है, जो है v इज इक्वल टू 6t है ना, फर्स्ट वाले पार्ट से। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 6t को, तो 6 कॉमन आ जाएगा, और d बाई डी टी ऑफ t, सेम फंक्शन सेम रिस्पेक्ट हमेशा 1 होता है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 6, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कैलकुलस में हमें समझने हैं। अब इसके बाद
तो अब हम इसके बाद जो हमारे की पॉइंट है उनके बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। और बाय कैलकुलस मेथड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। फर्स्ट इक्वेशन होता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन होता है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे हमें ड्राइव करना है, इसे हमें बनाना है। तो कैलकुलस मेथड से कैसे इसको ड्राइव करेंगे, ये हमारे पास टास्क है। तो सबसे पहले हमें इनके मीनिंग मालूम होने चाहिए। ये हमें अच्छे से मालूम है। v इजिकल टू हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v होता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, u होता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और v होता है फाइनल वेलोसिटी। u होगा इनिशियल वेलोसिटी, v होगा फाइनल वेलोसिटी। और ये जो t है, t तो वेल नोन है, टाइम, s है यहाँ पे डिस्टेंस, h है यहाँ पे हाइट, h है नहीं यहाँ पे, a है यहाँ पे एक्सेलरेशन, और s यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। तो ये इक्वेशन हमें फर्स्ट आपके कैलकुलस मेथड से हमें बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को कैसे हम ड्राइव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ की फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टार करके। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है जो अभी हमने डिस्कस किया था, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो सेकंड हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, ये हमारे पास है। इसके बाद ये जो हमारे पास वही वाला फॉर्मूला है, a इजिकल टू डी वी बाई डी टी। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं। ये जो डी वी बाई डी टी है इसको हम थोड़ा सा आगे इसको हम एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पे ये मैथ का स्टेप भी है कि अगर हम इस इक्वेशन के नोमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी ये इससे कैंसिल होकर वही हमको मिलेगा। तो ये सिर्फ इसे लिखने का तरीका है, इसकी भी हमें हेल्प लेनी है हमारे थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए। तो ये की पॉइंट इसे समझेंगे। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डी एक्स से डी एक्स को कैंसिल करेंगे तो डी वी बाई डी टी मिलेगा। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लिमिट कंटिन्यूटी मैथमेटिकल बेस है। एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये ए टू बी यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। ये आपका लोअर लिमिट होता है, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। अपर पार्ट में जो होता है उसको अपर लिमिट कहते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए लिमिट का। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं लिमिट में, तो सबसे पहले इस फंक्शन जो एफ एक्स फंक्शन है, एक्स को रिप्लेस करता है अपर फंक्शन अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस लोअर लिमिट को रिप्लेस करता है तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इंटीग्रेशन मेथड में, कैलकुलस मेथड में। ये की फॉर्मूला है। इसके बाद ये बेसिक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला फॉर्मूला हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा v इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और ये बेसिक चीज़ें हमें बहुत अच्छे से मालूम है। u इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और t है यहाँ पे टाइम। अब सपोज इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पे सपोज कोई कार है या कोई ट्रक है, ये कोई इस तरीके से यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। सपोज ये कोई कार है, ठीक है। अब ये कोई कार है सपोज, तो इस कार का ये यहाँ से जब चलना शुरू करता है, इस बेस पॉइंट ए पॉइंट से चलनी शुरू करती है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो सपोज स्टार्टिंग पॉइंट जब ये यहाँ पे रेस्ट पे रहेगी, जब ये रुकी हुई रहेगी, कार रुकी हुई पोजीशन में है, तो ये इसका जो u इनिशियल वेलोसिटी जिसे हमने u से डिनोट किया, ये ज़ीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगी और थोड़ा टाइम पीरियड के बाद वो सपोज इस तरफ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये मैं इसको रफली बना रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पॉइंट पे पहुँच गई टी टाइम पीरियड के बाद। तो इसकी और फिर यहाँ पे आके इसने जो कार चलाने वाला जो ड्राइवर है उसने ब्रेक लगाया, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ब्रेक लगाने पे, बट उससे कुछ पहले, कुछ इंस्टेंट पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रही होगी। सपोज ये वेलोसिटी या स्पीड समझे, अगर ये सपोज मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए कि ये सपोज 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 80 है इसका ये स्पीड है, लेकिन अगर मैंने इसको कहा कि ये राइट डायरेक्शन में, ये राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी यहाँ पे सपोज हम बोलते हैं कि ये 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही, सपोज हमने कहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी 60 हो जाएगी, ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, v से जिसे डिनोट किया जाता है। और ये जो सपोज हमने कहा कि ए पॉइंट से और बी पॉइंट, जहाँ पे इसे जो इसका डेस्टिनेशन पॉइंट था जहाँ पे ब्रेक लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज मैंने कह दिया ये 1.5 किलोमीटर का है, तो ये जो ये आ गया, इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हमें मालूम है। अब इसको बेस मानते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना है, और ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब कार ने चलना शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, टाइम पीरियड t था। तो इसी रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलस मेथड से आगे बढ़ाते हैं और अपना बेसिक की फर्स्ट जो हमारा की फॉर्मूला इसकी हेल्प लेते हैं। तो वी नो दैट a इज इक्वल टू dv बाई dt, वी नो। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। अब हमारे पास यहाँ पे at है, यहाँ पे dv है, हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू लिमिट। अब लिमिट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो a यहाँ पे एक्सेलरेशन है और टाइम हमारे पास dt है, ये इस तरह से आ गया, इज इक्वल टू 1 dv, ठीक है। तो जब हम इसको लिमिट के कंसेप्ट में समझेंगे, तो सपोज वो हमने अभी कार का एग्जांपल दिया था, कार की जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है, और फाइनली जब हमने उसको ब्रेक लगा के रोका, या उसका जो टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी v थी। तो ये जो लिमिट कंसेप्ट यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा u टू v। और यहाँ पे टाइम पीरियड, जब हम रेस्ट से चलना शुरू करते हैं तो टाइम 0 होता है, और जब फाइनली उस टाइम को लेते हैं तो वो t होगा, तो 0 टू t, लोअर लिमिट 0 टू t हम यहाँ पे लेंगे लिमिट के कंसेप्ट के साथ। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1 dt 0 टू t इज इक्वल टू 1 dv, ये हो जाएगा 1 dv लिमिट u टू v। और 1 dv को हम कह सकते हैं कि इसका जो 1 dx हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कैलकुलस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1 dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग ये v हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे v है, और लिमिट को हम सॉल्व करेंगे u टू v। अब ये हमारा ये जो ये वाला फंक्शन हमने अभी ये फॉर्मूला की फॉर्मूला लिखा हुआ है fx a टू b लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यहाँ पे आपके पास अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u है, तो इस v को रिप्लेस करेगा पहले v इस वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा v, फिर माइनस लोअर लिमिट जो u है, तो ये हो जाएगा v माइनस u। लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक करेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो हमने ब्रैकेट से बाहर लिया है, 1 dt का ये वाला बेसिक फॉर्मूला लगता है, तो 1 dt का हो जाएगा t, और लिमिट का कंसेप्ट लगेगा 0 टू t। तो इसमें फिर से हम अगेन इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बेसिक हमारे पास कैलकुलेशन यहाँ पे मिलती है, बेसिक कैलकुलेशन हमारे पास मिलेगी कि सपोज टाइम को हम अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो टाइम को t से रिप्लेस करेंगे तो t आएगा, माइनस t को 0 लोअर लिमिट रिप्लेस करेगी तो 0 आएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा, राइट हैंड साइड में v माइनस यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, किसी भी नंबर में से 0 को लेस करके वही नंबर मिलता है, तो 80 हो जाएगा, ये v माइनस यू। जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 80। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन प्रूव बाय कैलकुलस मेथड। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करके अपना फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव किया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हमारी इस वाले डेरिवेशन में हुई। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन हम प्रूव करते हैं।
सेकेंड इक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करना हमें, तो इसके लिए हमें ये वाला सेकेंड वाला की फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है v इजिकल टू डी एस बाई डी टी। इसको हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ इसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें डी एस लाना है, तो ये भी इस वजह से इसका यूज हम करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद नॉर्मल मैथमेटिक्स के स्टेप, कैलकुलस का यूज। तो ये हमारा बेसिक की फॉर्मूला है, वी नो दैट डी वी इजिकल टू डी एस बाई डी टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा v इंटू डी टी इजिकल टू डी एस। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन से मालूम है v इजिकल टू होता है u प्लस ए टी बाई फर्स्ट इक्वेशन। वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी इजिकल टू डी एस। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी एस इजिकल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, नाउ टेकिंग, अब ये साइन यूज कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन है। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड विद लिमिट। अब लिमिट की बात कर रहे हैं तो लिमिट का कंसेप्ट हमने अभी समझा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है तो उसकी जो इनिशियल जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो होगा। तो जब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट के कंसेप्ट के साथ तो ये हो जाएगा 0 टू s, क्योंकि यहाँ पे s हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस इजिकल टू, यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्लस में है, तो ये जो हमारे पास u इंटू डी टी ए टी डी टी, तो फंक्शन t के रिस्पेक्ट में है, तो जो चीज़ें फंक्शन से डिफरेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा u, यहाँ पे बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर, और ये dt और टाइम 0 टू t हम लेंगे। अभी प्रीवियस इक्वेशन में भी हमने लिमिट लिया था 0 टू t। रेस्ट से चलना शुरू करेगा मीन्स 0 टाइम टू फाइनली उसका टाइम जो चेंज हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, प्लस a यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और t dt इसका इंटीग्रेट करके लिखेंगे, एक्सेलरेशन को बाहर ले लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे सेम फंक्शन सेम रिस्पेक्ट। टाइम की बात हो रही है तो जो लोअर लिमिट आएगी वो 0 टू t आएगा इस तरीके से। अब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करना है, तो अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 1ds। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1ds जो भी होता है, ds की वैल्यू हमेशा क्या होती है, s होती है, क्योंकि हमने प्रीवियस फॉर्मूले में पढ़ा था 1dx को हम x लिखते थे। ये फॉर्मूले हमारे कैलकुलस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, इनकी हेल्प से हम लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो बनेगा वो बनेगा s, और लोअर लिमिट 0 टू s इजिकल टू, अब ये u कांस्टेंट है बाहर है, 1 dt। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 dt को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा t, और यहाँ पे भी तो ये हो जाएगा t, और लोअर लिमिट हमारी है 0 टू t, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट बाहर है, और t dt। यहाँ पे देखिए बहुत बेसिक फॉर्मूला लगेगा, पावर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x रेज पावर n dx, ये हमने पढ़ा था। इसका फॉर्मूला होता है x रेज पावर n प्लस 1 प्लस c, ये हमने पढ़ा था, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जब हम इंटीग्रेशन t dt सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें पावर जो दिखाई दे रही है वो 1 है, तो जब पावर फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा n प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई t 2। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 0 टू t dt, तो ये हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ा है। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और लिमिट का कंसेप्ट 0 टू t। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगता है fx a टू b, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो पहले फंक्शन को रिप्लेस करेगा अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, तो ये इस तरीके से। और यहाँ पे भी वही लॉ लगेगा, पहले अपर लिमिट जो t है, लोअर लिमिट 0, प्लस यहाँ पे भी वही लगेगा t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जब हमने t को dt के रिस्पेक्ट में आया तो t स्क्वायर बाई 2 आया था, माइनस 0।
तो 0 0 वाले, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को या किसी भी फंक्शन में 0 को लेस करके इसका इफेक्ट कुछ, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में s इजिकल टू ये बनेगा ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमने कैलकुलस मेथड से सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव किया, और इसके लिए हमारे जो बेसिक की फॉर्मूले हैं वो है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड लिमिट का कंसेप्ट। तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारी ड्राइव हो गई। अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन। तो मोशन का थर्ड इक्वेशन बहुत ही बेसिक, 9th क्लासेस में हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा है और बेसिक मेथड से भी इसको सॉल्व किया, जो कि इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक की फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो है a इज इक्वल टू dv बाई dt। वी नो दैट इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू dv बाई dt। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी वे है। अब देखो ये जो t है इसको अगर हम थोड़ा सा सेपरेट करके आगे ले आते हैं तो ये dv बाई dt आ गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर नोमिनेटर में हम सेम यहाँ पे dx से इसको डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स स्टेप है, ds से ds कैंसिल, dv बाई dt, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें अपने कुछ वैल्यूज़ हमें यहाँ पे ऑलरेडी की फॉर्मूले में है तो उसकी हेल्प से आगे सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमने बनाया dv बाई dt को dv बाई ds बाई dt, और हमें मालूम है ds बाई dt जो हमने बनाया वही क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं dv बाई ds इंटू, अब ये जो ds बाई dt है यही होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, जिसे v से डिनोट किया जाता है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ads इज इक्वल टू v इंटू dv। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में, तो वही फिर से अगेन वही स्टेप, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू लिमिट। अब लिमिट के रिस्पेक्ट में हम लेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन 0 टू s, क्योंकि s की बात हो रही है, यहाँ पे ds आ गया। वेलोसिटी को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में लेना है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, तो ये हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1। अब हमें बेसिक फार्मूला मालूम है 1 ds, इसको हम लिखते हैं s, तो इसकी हेल्प से ये हो जाएगा s, और लोअर लिमिट हमारे पास है 0, अपर लिमिट है s। उसी तरीके से ये हमें मालूम है v को v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 बाई पावर फॉर्मूला। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट का कंसेप्ट जब लगाएंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास u है, अपर लिमिट v है। अगले स्टेप में ये fx a टू b वाला फंक्शन पहले अपर लिमिट रिप्लेस करेगा इसको, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। इसको कॉमन लेके लिख सकते हैं v स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2, इसको कॉमन लेके लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा as इज इक्वल टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को सॉल्व किया। इसको आगे बढ़ाते हैं, और फाइनली हमारे पास आ गया as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको रिप्लेस करेंगे, साइड चेंज करेंगे, माइनस को इधर ले जाएंगे, प्लस बन जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से हम अपना इंटीग्रेशन मेथड, कैलकुलस मेथड से बेसिक की फॉर्मूले की हेल्प से अपना तीनों मोशन की इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। और इस वीडियो वी नो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे t भी ले सकते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन t के टर्म्स में ले रहे हैं, ये हमें मालूम है। इसी तरीके से a t माइनस 1, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हमें डेल्टा s निकालना है। डेल्टा s होता है, वो होता है एस टी
अब इसको एस टी भी समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टी की बात हो रही है। एस टी माइनस वन मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी और उससे 1 सेकेंड पहले वाले टाइम पीरियड का जो पर्टिकुलर टाइम टी और t-1 टाइम उससे 1 सेकेंड पहले वाला जो टाइम होगा उसके लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिस्प्लेसमेंट का क्या, डिस्टेंस का क्या इक्वेशन होगा, उसे डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टी माइनस वन से समझेंगे। मीन्स इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का जो डिफरेंस होगा वही डेल्टा एस आएगा। तो हम इसको समझ सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड मीन्स यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस वन प्लस 1/2 ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके हमें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, नेगेटिव साइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला सॉल्व होकर हमें मिलता है u प्लस हाफ ए कॉमन लेके ये मिल जाएगा 2t माइनस वन। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर पर्टिकुलर टाइम। ये जो इक्वेशन है वो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए ये इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को समझते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस वन या 2t माइनस वन। डेल्टा एस इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए 2t माइनस वन वेयर ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमारे कैलकुलस मेथड से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमने बनाई। फोर्थ इक्वेशन सिंपल वे में हमने समझी जो कि थर्ड इक्वेशन से भी हमने बनाया, और फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसमें कि हमें कैलकुलस मेथड से एक डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, जो कि हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से समझ के बार बार प्रैक्टिस करके और की फॉर्मूले की हेल्प से इसको ड्राइव करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।